वो जो गेज होती है ना, दैट इज़ द एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी टुवर्ड्स यू। राइट। वो ये मानते हैं कि ये इन्होंने लाइफ में पहली बार तो एग्जाम क्लियर किया, दैट इज इन इटसेल्फ एन अचीवमेंट। आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो जिससे आगे जाके एक सोसाइटी की सर्विस होगी, देन दे टॉक टू देमसेल्व्स विज़-अ-वी दे टॉक टू गॉड ऑल्सो। दिस आई विल नॉट गिव अप, नॉट स्टेपिंग बैक, टेकिंग अनदर स्टेप फॉरवर्ड। जाना है, करना है और जाके हम जो मर्जी होगी देखी जाएगी। सडनली एवरीथिंग चेंज, आईपीएस बन गए हो। मेरी पैरों के नीचे से जो जमीन थी वो खिसक गई। सर, प्रिपरेशन के टाइम पे यू मेंशन देयर वर डिफिकल्टीज अबाउट योर डिसीजंस एटसेट्रा, आल्सो सेटबैक्स वर देयर। जितना स्टूडेंट जो है वो मेहनत करता है, जितने वो डिफरेंट सिचुएशन में पढ़ता है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं सबकी कर रहा हूँ, आपकी मेरी सबकी। हाउ वाज एनपीए फॉर यू? It's a once in a lifetime experience. First place where you get to, live like an officer. Today we are honored to be joined by an IPS officer, Mr. Harish Dayama, of the 2014 batch Punjab cadre. His journey from Gujarat to Punjab is one of determination, resilience and purpose. Mr. Dayama completed his schooling from St. Stephen's in Gujarat, followed by BSc in Life Sciences from Shivaji College, University of Delhi, and post-graduation from Biosciences from Jamia Millia Islamia. Along the way, he appeared for and cleared many other examinations like CDS, CAPF, and the Indian Forest Service. He reached the UPSC interview in his first attempt in 2012 and secured the Indian Revenue Service in 2013, and then got the Indian Police Service in the same year, which became his final service. He began his career in Jammu and Kashmir cadre, where he served in RS Pura under his training. In 2017, he shifted to Punjab, and since then he has held several key leadership roles, including ASP Amritsar, Fagwara, Kapurthala, ACP Jalandhar, SP Nawaz Shahar. He was also a part of the prestigious CM Security, and later he served as ADCP Ludhiana. He then went on to serve as the SSP in multiple districts like Kapurthala, Bathinda, Khanna, and Gurdaspur. He then took over as the AIG Intelligence and is currently serving as the Joint Director Vigilance Bureau of Punjab. From disaster response to policing during COVID-19 pandemic, from grassroots level leadership to high command responsibilities, Mr. Dayama's experience offers invaluable lessons for aspirants preparing for the service. We are truly privileged to have him with us today. Welcome, sir. Thank you. So your journey has actually started from Gujarat, wherein you had joined the state board. In the initial years when you were a child, were there any signs that you wanted to join the civil services? In the initial years, I had no idea about what civil services is. I was just a boy enjoying the school, my family, and it was only in later years when we get to know about our career paths, then we got to know about civil services. Sir, तो कब ऐसा पहली बार आपने डिसाइड किया that you want to become a civil servant? आई थिंक ये एक मोमेंट नहीं था, मतलब मुझे ये याद है कि जब हम पढ़ाई करते थे, स्टार्टिंग फ्रॉम स्कूल ऑल्सो, कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हो कि क्यों ऐसी चीज़ हो रही है, इनजस्टिस क्यों हो रहा है किसी के साथ में। या फिर जब हम कॉलेज में होते थे, एक तो ये होता है कि पर्सनल हार्डशिप, कि आपको कॉलेज तक बस लेके जाना है, बस भी एक सीधी नहीं जाती, आपको बहुत सारी बसेस लेनी है, पास बनवाने हैं, बहुत कुछ करना है। सो यू आर लिविंग द लाइफ व्हाट एन एवरेज इंडियन इज लिविंग, एंड यू सी व्हाट आर द लूप होल्स, व्हाट आर द थिंग्स दैट कैन मेक द लाइफ ऑफ एवरेज इंडियन मोर स्मूथ। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट से। सो वो डेली डेली इनग्रेन होती रहती थी चीज़ें, और मुझे लगता था कि क्यों ना हम ऐसी चीज़ करें जिससे हमें, जैसे यूथ है या स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कन्वीनियंस हो जाए। सो ये सारी चीज़ें प्लस अ लॉट ऑफ इनजस्टिस, पर्सनल एक्सपीरियंसेस, मुझे ये लगता था कि मुझे लाइफ में कोई ऐसी पोजीशन पे जाना है जहाँ पे मैं कुछ डिफरेंस कर सकूँ, एटलीस्ट कुछ डिफरेंस कर सकूँ, इफ़ नॉट एवरीथिंग। What age or what stage of education did you finally decide that आप ये एग्जाम लेना चाहते हैं? ये पोस्ट ग्रेजुएशन की बात है, क्योंकि माय फादर इज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। वो कोई क्लास वन ऑफिसर नहीं है, वो एक नॉर्मल रेलवे के एम्प्लॉय हैं, और उन्होंने हमें बचपन से ये सिखाया था, क्योंकि जब वो भी सर्विस करते थे, सो ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, ही इज़ वेरी डेडिकेटेड टू हिज सर्विस, टू हिज कंट्री, टू द डिपार्टमेंट। सो वो हमें हमेशा बताते थे कि जो ऑफिसर होता है उसकी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, और जैसे वो ऑब्ज़र्व करते थे, क्योंकि उस ज़माने के जो ऑफिसर थे वो एक्चुअली जो हम एक बेंचमार्क मानते हैं,
how to behave, how to look forward for your work and how to look upon your जूनियर सबॉर्डिनेट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो हमेशा ये बोलते थे कि आपको ऑफिसर बनना चाहिए, और वो बोलते थे कि यूपीएससी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर आप एग्ज़ाम देंगे तो आप बन जाएंगे। उसके लिए आपको ग्रेजुएशन जो है वो बेसिक क्वालिफिकेशन है। तो चाहे आप डॉक्टर बन जाए, चाहे आप इंजीनियर बन जाएं, बेस्ड ऑन योर मेरिट एंड बेस्ड ऑन योर कैपेसिटी, यूपीएससी का एग्ज़ाम ज़रूर दीजिएगा। सो मैंने ग्रेजुएशन के टाइम पे, मुझे पता नहीं था यूपीएससी में, क्योंकि जब मैंने उसकी वेबसाइट खोली थी और प्लस जो पेपर में आते थे पहले उसकी नोटिफिकेशन सिलेबस, सो उसमें मैंने देखा था कि इसमें तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, Yes. क्योंकि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर आता था, Employment एक news, yes. रोज़गार समाचार बोलते थे उसे। तो उसे जब मैं पढ़ता था, बहुत मोटा था, उसके अंदर बहुत नॉलेजेबल इट वाज, एंड आई सॉ कि इतनी सारी एग्ज़ाम्स है, तो मैंने सारे एग्ज़ाम्स दिए। Okay. सो फ्रॉम दैट आई गॉट टू नो कि भाई इसमें जो सबसे ज़्यादा टफ माना जाता है वो है सिविल सर्विसेज सीएससी एग्ज़ाम है, जिसको एक बहुत बड़ा ब्रांड माना जाता है। तो तब मैंने ये डिसाइड किया था कि मुझे ये देना है, क्योंकि चाहे हो या ना हो, वो तो चलो किस्मत भी है, हमारी मेहनत भी है, बट एग्ज़ाम मुझे देना है, इसे क्लियर करना है एंड अपने आप को साबित करना है कि भाई हम कर सकते हैं ये। तब फिर ग्रेजुएशन के बाद में मैंने ये डिसाइड किया था। सो दैट्स वंडरफुल। एंड सर, बहुत ही अर्ली एज पे आपने ये कहा कि आपके फादर आपको बताते थे कि सिविल सर्वेंट की कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए या एक ऑफिसर की कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए। क्या लगता है सर, नाउ यू हैव जॉइन द सर्विस, यू हैव सर्व्ड फॉर मेनी नंबर ऑफ ईयर्स, यू वर 2014 बैच, नाउ इट्स बिन मोर देन अ डेकेड दैट यू बीन इन सर्विस। क्या लगता है सर आपको कि कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 क्वालिटीज़ हैं जो एक सिविल सर्वेंट में होनी चाहिए? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं समझता हूँ कि इसको जितना जस्टिस के साथ जवाब दिया जाए उतना ही कम है, क्योंकि सिविल सर्वेंट जो है उसको सोसाइटी लुक्स अपॉन अ सिविल सर्वेंट। आप देखिए ज़रा, आप कहीं जाते हैं, भीड़ है ना, सिनेमा हॉल है या कोई मार्केट का एरिया है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया पर्सनली, कि जब आपको बताया जाता है कि जी ये एक आईएएस ऑफिसर हैं या ये एक आईपीएस ऑफिसर हैं या एक आईआरएस ऑफिसर है, या जो भी, मतलब एक सिविल सर्वेंट, एक ब्यूरोक्रेट है, सो सारे जो आपके आसपास होते हैं वो दे लुक अपॉन यू। सबसे Yes. पहले वो जो गेज होती है ना, दैट इज़ द एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी टुवर्ड्स यू। राइट। वो ये मानते हैं कि ये इन्होंने लाइफ में पहली बार तो एग्ज़ाम क्लियर किया, दैट इज़ इन इटसेल्फ एन अचीवमेंट। वेरी ट्रू। और दूसरा, दे हैव द कैपेसिटी टू ब्रिंग चेंज एट वॉट एवर लेवल यू आर, क्योंकि आप तो सारे लैडर को क्रॉस करते हो, यू रीच टिल द टॉप ऑफ द हायरार्की। सो वो जो एक्सपेक्टेशंस है सोसाइटी की, उसको पूरा करना पहली क्वालिटी है। हर एक स्टेप, जैसे गांधी जी ने कहा था, एक तलिस्मन उनका बड़ा पॉपुलर है, यस। वो हमारे कॉलेज की कैंटीन में भी लगा हुआ था, क्योंकि बच्चे एक साथ बैठ के खाना खाते हैं वहाँ। तो उन्होंने लिखा था कि वट एवर स्टेप यू टेक इन योर सबकॉन्शियस माइंड, इन योर माइंड इट शुड ऑलवेज बी कि इस स्टेप से हमारे देश के आम आदमी पे इसका क्या असर पड़ेगा। चाहे वो अच्छा स्टेप ले रहे हो, चाहे वो आप अपनी जो आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो जिससे आगे जाके एक सोसाइटी की सर्विस होगी, या आप गलत स्टेप ले रहे हो, तो वो दोनों स्टेप्स जो हैं उस वो लेते समय अगर आपके दिमाग में ये रहेगा कि सोसाइटी में उस स्टेप का क्या असर होगा, आप क्या लीडर बनते हैं या आप एक जो भी कुछ बनते हैं, वो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया। और दूसरा ये है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी डज नॉट मीन्स के ऑनेस्ट इन टर्म्स ऑफ करप्शन, नो करप्शन और सम अदर थिंग। ऑनेस्टी शुड बी टू योर सेल्फ, कि आप अपने आप से कितने ऑनेस्ट है ना। सो जब हम अपने आप से ऑनेस्ट होते हैं तो हम अपने गोल अचीव करते हैं, और ऐसे ही जब हम अपने काम के लिए ऑनेस्ट होते हैं, हम अपनी सर्विस के लिए ऑनेस्ट होते हैं, तो जो एक्सपेक्टेशंस है लोगों की हमसे, वो पूरी करने में हम काफ़ी हद तक कामयाब होते हैं। तो मुझे लगता है कि द एक्सपेक्टेशंस ऑफ पीपल फ्रॉम द ब्रांड ऑफ एन ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, फ्रॉम द ब्रांड ऑफ यूपीएससी, आपने देखा होगा ना, जो कई गांव में, पिंडों में या प्राइमरी स्कूल्स में कहीं पे भी आप जाओगे ना, तो जो जिसको बिल्कुल नॉलेज ना भी हो, वो भी ये बोलेगा अच्छा ये यूपीएससी के थ्रू आए हैं। सो दैट ब्रांड, टू कीप दैट ब्रांड हाई, that is a, you know, the that is a challenge for us, and we should try to always keep that brand very high. True.
Actually, I think I would like to reiterate for the students that sir has pointed out three qualities that are very, very important, and one responsibility. First, that you must serve the collective conscience. Second, that you should always be honest to yourself, not just to the system, not just to outsiders, but to yourself. That integrity has to be there. And third, you must serve the people who are going to always look up to you. And one responsibility that civil services and qualifying an exam from the UPSC says that there is something special. So to take care of that responsibility is also up to you. Very, very well said, sir. Thank you. So I'll take you a little back to your times of education. Actually, you have done sciences in your graduation and your post graduation as well, and there is a lot of encouragement that we have in terms of constitution, in terms of a preamble also, wherein we want to have scientific temper in India. So how do you think that sciences particularly have impacted you or your scientific temper? Um, आई थिंक साइंस से मतलब क्या होता है कि जब आप एक लेवल से ऊपर आते हो, व्हेन यू बिकम अगेन द पार्ट ऑफ सोसाइटी बाय सर्विंग इट, यू रियलाइज ऑल दी फील्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, एवरीथिंग इंटीग्रेटेड मेक्स आवर कंट्री व्हाट इट इज़. सो साइंस का मैं ये कहना चाहूँगा, इट इज़ एविडेंस बेस्ड, है ना, कि साइंस में देर आर theories, postulates, and then theories which are proven become the rules Yes. or the principles. So science teaches us कि आप एक आपको वे फॉरवर्ड दे देता है कि E इज इक्वल टू MC², तो वो होगा ही होगा. सो साइंस ने डिसिप्लिन भी सिखाया है. साइंस की वजह से हमें जो है जो हम कहते हैं ना कि रूढ़िवादी सोच से हम दूर होते हैं, है ना, कि हमें एनलाइटन करता है साइंस. मतलब साइंस का कंट्रीब्यूशन डेफिनेटली काफ़ी है, और जो लास्ट एक सेंचुरी रही है जिसमें इनोवेशंस और साइंटिफिक डिस्कवरीज जो है दे हैव बीन ट्रेमेंडस. सो मुझे लगता है कि इट इज़ वेरी इंस्पायरिंग. जैसे थॉमस एडिसन है, उनके एक डिस्कवरी से जो सॉरी इन्वेंशन से जो हम बैठे हैं ये लाइट देख रहे हैं, फ्रॉम लैम्प वी केम टू फ्रॉम दी, दैट वाज अ प्रोग्रेस. सो साइंस ऑलवेज इंस्पायर्स एंड इट इंस्पायर्स मी. मैंने ज़्यादा जेनेटिक्स और जो बायोटेक्नोलॉजी है उसकी फील्ड की स्टडी की थी, तो उसका भी एक अलग मुझे वो लगा कि एट माइक्रोस्कोपिक लेवल द थिंग्स आर दे आर वंडरफुल. मतलब आप देखें, जैसे ये माइट नॉट बी डायरेक्टली रिलेटेड, बट मैंने ये देखा था कि जैसे डीएनए बनता कैसे है, डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है, हर एक छोटी छोटी जो माइक्रोस्कोपिक बॉडीज होती है उसका अपना रोल है. दे आर परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर रोल इन दैट पर्टिकुलर सेल, बिकॉज ऑफ विच द सेल इज परफॉर्मिंग इट्स ड्यूटी इन द एंटायर बॉडी, चाहे वो ऑर्गन लिवर हो, चाहे वो किडनी हो, चाहे जो मर्जी हो. सो अगेन फॉर सिविल सर्विसेज, आप जिस भी सर्विस के पार्ट हैं, यू आर परफॉर्मिंग एंड एट वट एवर लेवल यू आर. चाहे आप क्लर्क हैं, चाहे आप गेट कीपर हैं, चाहे आप गार्ड हैं, चाहे आप जो मर्जी हैं, आपका एक पर्टिकुलर रोल है जो आप अच्छी तरह से निभा रहे हैं, तो पूरा सिस्टम जो है वो चल रहा है. दिस इज हाउ आई सी साइंस इन आवर सर्विस. Very, very interesting, actually, sir. And our former Prime Minister, Mr. Manmohan Singh, actually wrote an article when Corona had hit the world. And he had spoken about how impactful a microscopic organism can be, wherein it shook the entire world, actually. So, very, very similar to the concept that you're talking about, and actually very insightful. And economy also. Yes, the world economy. Sir, your journey has been filled with examples of resilience. You had given the CDS exam, you had sat for the CAPF exam, and you had also sat for the Indian Forest Service exam. The story goes that you lost the Forest Service, you lost qualifying by 1 mark. So there are such setbacks which our students also have to face. बहुत बार ऐसा होता है कि आप कुछ marks से रह जाते हैं, and then you have to repeat the entire cycle of 1 year or more than a year, and then you have to start the preparation from the very bottom again. तो सर, डिड यू एवर हैव डाउट्स कि आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? डिड वर देयर एनी फियर्स इन योर माइंड दैट मे बी आई शुड नॉट, मे बी आई शुड थिंक ऑफ समथिंग एल्स? मैं मतलब आपकी जो आपने बहुत अच्छी तरह से बताया है उसमें मैं 2-3 एग्जांपल्स हैं. मतलब क्या होता है कि जब भी एक स्टूडेंट अपनी लाइफ देखता है ना, तो देर आर वेरी पर्टिकुलर पॉइंट्स जहाँ पे दे टॉक टू देमसेल्व्स.
देन दे टॉक टू देमसेल्व्स, विज़-अ-वी दे टॉक टू गॉड आल्सो, कि भाई क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, ज़रा मुझे ब्यौरा दीजिए इसका। तो मेरी लाइफ में मुझे ये लगता है कि देयर वर 2-3 इवेंट्स व्हिच इम्पैक्टेड मी अ लॉट, एंड आई वाज वेरी वेरी ऑनेस्ट विद माई सेल्फ। एक तो ये था कि बचपन से मेरी इच्छा थी कि जैसे ना डॉक्टर्स को हम देखते हैं तो 2-3 फील्ड, जब हम छोटे थे तो 2-3 फील्ड थी, इंजीनियरिंग, डॉक्टर Yes. या कॉमर्स और समथिंग। सो हमें ये होता था, पेरेंट्स और सब देखते थे जब डॉक्टर्स को, तो दे यूज्ड टू बी इंस्पायर्ड। तो मुझे भी लगता था कि यार मैं आगे जाके जो मर्जी करूं, मेरे को पहले एक बार ही आई वांट टू गिव दैट एग्जाम एंड क्लियर इट। Right. तो पहले पीएमटी का एग्जाम होता था, AIPMT। मैंने वो एग्ज़ाम दिया था, एंड आई हैड नो आइडिया कि ये तैयारी कैसे करनी है। मैंने सिर्फ एक मार्केट से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बुक लेके आई ट्राई टू रीड इट, Right. और देयर वाज नो गाइडेंस, देयर वाज नो कोचिंग। थी कोचिंग गाइडेंस, बट पैसे नहीं थे इतने कि हम अफोर्ड कर सकें, बहुत कॉस्टली होती है इसकी। सो मैंने सिर्फ एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, मेरा नहीं हुआ क्वालिफाई। मैंने 3 बार दिया, जितने भी अटेम्प्ट होते हैं तो वो मैंने तीनों एग्जॉस्ट कर दिए। लास्ट वाले में मैं आई वाज वन, द डे द रिजल्ट केम आई वाज सो डिसहार्टेंड। मतलब आप ये इनोसेंस देखिए कि आप तैयारी कर नहीं रहे आप ये मान रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन होना चाहिए। मतलब मैं सिर्फ लक पे मान रहा था कि भाई मैंने जो भी 12वीं पढ़ी है उसके हिसाब से आई कैन गिव, क्योंकि ये तो एंट्रेंस एग्जाम है ना। उस टाइम पे मेरा ये मानना था कि भाई कोचिंग क्यों चाहिए, why there should be an industry of where we are giving this privilege. So Right. if it is a platform open, let us uh, give it on the basis of our 12th standard. Right. जो भी कुछ idealism मेरे दिमाग में था, but नहीं हुआ। then ultimately that night I became very sad and I was thinking कि चाहे मुझे कोई salary भी ना दे, but I still want to study MBBS and then I Okay. become a doctor and then I will serve the society. तो थोड़ा सा मेरे को ये था, बट चलो फिर मुझे लगा कि नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, शायद समथिंग ग्रेटर इन लाइफ वुड बी देयर फॉर मी। Right. सो दैट ग्रेटर पार्ट केम आफ्टर आई थिंक 2 years, जब फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी। सो पोस्ट ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में मैंने अटेम्प्ट दिया था। फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी, और फिर उसके बाद में मेरा इंटरव्यू तक तो हुआ था, विच वॉज अगेन अ वेरी बिग थिंग। और इंटरव्यू के बाद में फिर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो जिस रात को सिलेक्शन नहीं हुआ, दैट वाज द सेकंड टाइम आई फेल्ट द सैडेस्ट कि भाई क्या हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ। फिर अगेन आई थॉट, क्योंकि मैंने ना कोचिंग, फॉर्मल कोचिंग नहीं ली थी उस टाइम पे, बट येस आई हैड अ सर्कल ऑफ फ्रेंड्स हु वर स्टडिंग। सो जब नहीं हुआ तो मैं अपने ब्रदर के साथ बैठा था, मैं सोच रहा था कि ऐसा क्यों होता है। जैसे हम सोचते हैं ना कि बेचारे जो सबसे ईमानदारी से कर रहे हैं उनके साथ गलत क्यों हो रहा है, सम काइंड ऑफ फिल्मी थिंग। खैर हमने डिस्कशन करा के फिर माय फादर वाज वेरी पॉजिटिव, और वो हमेशा बोलते थे कि जो चाहिए आप मेहनत करो, आपको ज़रूर मिलेगा। तो उस रात को हम सो गए। सुबह मैं उठा अर्ली मॉर्निंग, अगेन मेरी आदत थी कि मैं जल्दी उठता था, अभी भी उठता हूँ लेकिन 6 बजे उठ के आई वेंट टू द बालकनी। वो एक छोटा सा अपार्टमेंट था जहाँ पे हम रेंट पे रहते थे। सो उसके बालकनी में बैठा था और मैं सोच रहा था कि व्हाट आर द ऑप्शंस नाउ, है ना। तो एक तो ये है कि जो साथी जिनके नहीं हुए थे, हम सब आपस में बात कर रहे थे, क्योंकि टिल द टाइम हम ये सोचते थे कि वी आर ऑफ अ प्रिविलेज लॉट, कि हमने इंटरव्यू दिया है। सो हमने जैसे मैंने एक से बात करी, उसने कहा कि भाई मैं तो अभी नहीं दूंगा, क्योंकि 2012 के जो फाइनल रिजल्ट था उसके बाद में 13 का जो एग्जाम होना था, दैट वाज जस्ट 20 डेज अपार्ट, 19 या 20 दिन ही थे। Yes. और उस टाइम पे शायद आपको ध्यान होगा कि सिलेबस बहुत ज़्यादा चेंज हो बहुत रहा चेंज था। हुआ था, फर्स्ट very वाला true. जो था वो पुराने पैटर्न पे था, 12 वाला, 13th वाले में CSAT आ गया था, या मेंस नहीं का आई पूरा थिंक हाँ मेंस चेंज हो गया था, syllabus कि and द exam. गैप वाज मोर, है ना, Yes. एग्जाम्स की डेट चेंज हो गई थी। तो एक्चुअली सर पहली बार वो 4 सब्जेक्ट जो GS हाँ पेपर 1 2 3 4 है वो या इंट्रोड्यूस हुए थे आपके टाइम में, जी एंड योर बैच वाज द वन जिसमें मतलब इट वाज अ वेरी वेरी टफ सिचुएशन टू एक्चुअली क्वालिफाई। जब सिलेबस चेंज हुआ था, जब ये पैटर्न चेंज हुआ था, उसके अनाउंसमेंट में और आपके फाइनल एग्जामिनेशन के बीच में इतना छोटा पीरियड था, एंड अ न्यू सब्जेक्ट ऑफ एथिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड, बिल्कुल सो बिल्कुल इट वाज हाँ, अ नाउ आई वेरी रिमेम्बर टफ सो इट वाज सो मच टफ एंड इट वाज सो अनप्रेडिक्टेबल। और उस टाइम पे ये भी चल रहा था कि ऑप्शंस को लेके यूपीएससी वाज आल्सो एक्सपेरिमेंटिंग अ लॉट। तो यस, हमें, जैसे मैंने अपने उस फ्रेंड से बात की, उसने कहा कि नहीं मैं तो 1 साल का गैप लूंगा और मैं अभी नहीं दे सकता, आई एम नॉट इन दैट फ्रेम ऑफ माइंड। राइट, मैंने फ़ोन काट दिया। फिर मैंने अपने आप से सोचा कि नहीं, मैंने तो देना ही है एग्ज़ाम, चाहे जो मर्जी हो जाए। अब मैंने इतना अपना, अगर मतलब आई हैव पेड दैट मच ऑफ माई लाइफ एनर्जी टू दिस, आई विल नॉट गिव अप। वेरी ट्रू, मैं दोबारा दूंगा। फिर उसी टाइम पे मैंने अपने प्रोफेसर जो वहाँ पे थे, डिप्टी डायरेक्टर थे, उनको मैंने फ़ोन करके कहा कि सर मैं आ रहा हूँ,
और आके फिर आई विल नॉट गो बैक। फिर सडनली मतलब दैट वन डिसीजन ऑफ नॉट स्टेपिंग बैक, टेकिंग अनदर स्टेप फॉरवर्ड, जाना है, करना है, और जाके हम जो मर्जी होगी देखी जाएंगे। सडनली एवरीथिंग चेंज। मेरे फ्रेंड्स का मुझे फ़ोन आया कि हरीश कुछ नहीं हो, जिनका मेंस नहीं क्लियर हुआ था उन्होंने मुझे बुलाया। वी अगेन वेंट टू आवर हॉस्टल कॉलेज एंड स्टार्टेड स्टडिंग, और फिर उसके बाद में तो हो गया था। Actually, sir, जो आपने example दिया, I think this story of not succeeding once and then taking that decision and how it transformed your entire perspective and experience after that, कि जब आपने decide कर लिया कि नहीं मुझे ये exam देना ही देना है और दोबारा देना है, and I will not stop. I have given my life energy, I have given my time, I've invested myself in it, and then it completely transformed, and now you have more than a decade of service behind you and so much more to come. So it's actually a brilliant story to tell our students who will face setbacks also. So it's examination happens मतलब to मैं be तो ये समझ रहा हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मी एंड देम, मतलब जितने भी हैं क्या फर्क है, हमारा कोई लिखा हुआ तो नहीं है ना कि आई गॉट अ prepared note before getting the result. Right. So the uncertainty for you also is the same, the uncertainty for us also was the same. So मुझे तो लगता है कि करना चाहिए, इंसान को कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। Very true, sir. Sir, preparation के time पे you mentioned there were difficulties about your decisions, etc. Also setbacks were there. Was there any difficulty? हमारे students होते हैं वो दिल्ली जाके पढ़ते हैं, बहुत सारे students tier 2, tier 3 cities से भी पढ़ते हैं, but काफ़ी सारे students दिल्ली आके specifically पढ़ते हैं। वहाँ की situations काफ़ी बात बहुत मुश्किल होती हैं। Was there any specific difficulty that you faced in terms of staying there or in terms of hardships or anything like that? डेफिनेटली मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा तो स्टूडेंट जो है हमारे कंट्री में, ही इज़ द वन हु इज़ अ रोल मॉडल फॉर एवरीवन। जितना स्टूडेंट जो है वो मेहनत करता है, जितने वो डिफरेंट सिचुएशन में पढ़ता है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं सबकी कर रहा हूँ, आपकी मेरी सबकी। जब हमारी स्टूडेंट लाइफ होती है ना, वो हम सबके लिए एक एनकरेजमेंट होती है। जितना हम उसमें मेहनत करते हैं उतना कोई भी नहीं करता। तो स्कूल के बाद में, स्कूल वॉज इन टियर 3 से भी पीछे था शायद, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट था, इट वाज अ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, तो देयर वाज नॉट मच अवेलेबल देयर इन टर्म्स ऑफ कोचिंग और सर्कल ऑफ स्टूडेंट्स। सो 12वीं करने के बाद में मैं दिल्ली आ गया था। दिल्ली के अंदर फिर ग्रेजुएशन मैंने कर ली थी नॉर्मली एज अ नॉर्मल स्टूडेंट, और ग्रेजुएशन यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में जब तैयारी कर रहे थे उस टाइम पे आई फेस्ड अ लॉट ऑफ चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ कि आपको चीज़ें खुद मैनेज करनी पड़ती है। मॉनेटरी हेल्प आपको जो है शर्म आती है कि आप अपने पेरेंट्स से बार बार पैसे मांग रहे हो, आप बड़े हो गए हो, है ना। सो बेसिक कि आपने जो भी है 2000-3000 रुपीज़ दिए मैस का दिया। उसके बाद मेरा ये था कि मुझे सरकारी फैसिलिटीज़ जितनी भी, आई हैव टू अवेल दैम टू द फुलेस्ट। कि चाहे वो सरकारी लाइब्रेरी है, तो DPL होती थी, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, उसका मैं मेंबर था, और वहाँ पे कंप्यूटर्स लगे होते, स्लॉट्स होते थे, हम वहाँ से पढ़ लेते थे। कॉलेज की लाइब्रेरी बहुत अच्छी थी, वहाँ पे हम बैठ के पढ़ते थे। और एक था कि हॉस्टल वगैरह का मुझे कहा गया था कि कंपलसरी है कि आपको रुकना होगा, जहाँ हम पढ़ रहे थे, जो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में था। सो हॉस्टल में ये प्रॉब्लम आ गई थी कि भाई आपको रूम्स अवेलेबल नहीं है। तो जब रूम अवेलेबल नहीं होता तो फिर उन्होंने सम सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट दे मेड कि उन्होंने लॉबी को एक रूम बना दिया। सो उस लॉबी को मेरे को दिया गया कि भाई आपको ये अलॉट हुआ है। तो पहले तो मुझे पता नहीं था, जब वहाँ पे गए तो फिर पता चला कि यहाँ पे तो इन्होंने मंजा डाल दिया है, एंड इट्स दैट काइंड ऑफ। सो दैट वाज वेरी टफ, बट देन स्लोली आई रियलाइज कि पता है, जब तक आप अपने दिमाग में टफ लेके चलते हो, वो सिचुएशन तब तक ही टफ होती है। जब आप उसका रास्ता वे आउट फाइंड कर लेते हो, देन इट डजंट बिकम टफ। फिर मैंने खुद ही बैठ के सोचा कि भी मैंने जाना कितनी देर है उस कमरे में, पूरा दिन तो लाइब्रेरी में रहना है, या ट्रैवलिंग में निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको कोई एग्जाम देना है या आपको अपनी यूनिवर्सिटी के दूसरे सेंटर में जाना है, सो यू विल बी ट्रैवलिंग, यू विल बी स्टडिंग विद द फ्रेंड्स। तो सोने का पार्ट तो वही 3-4 घंटे होगा, तो 3-4 घंटे सो जाएंगे वहाँ पे, पता ही नहीं चलेगा। सो वो था। फूड एक प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आप अलग अलग जगहों से आते हो, फिर दिल्ली के अंदर कई बार आपको मे बी यू आर नॉट गेटिंग वेरी गुड क्वालिटी फूड, और आपको मैनेज करना होता है। तो हेल्थ इश्यूज आ गए थे, आई हैड कि मेरे को इन्फेक्शन हो गया था गले में, ये खाना वगैरह ठीक नहीं था। देन उसमें मेरा 1 महीना वेस्ट हो गया था। सो ये थोड़ा हेल्थ इश्यूज वगैरह रहते हैं, कई चीज़ें हैं। सो बट दैट इज़ द सेक्रीफाइस यू हैव टू मेक, और यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। सही बात मैं बताऊं तो ऐसे नहीं है कि ये सेक्रीफाइस है,
ये है कि ऑप्शन ही नहीं है, और शायद वो सही अच्छी बात के लिए वो ऑप्शन नहीं थे। अगर ऑप्शन होते तो हम कंफर्टेबल हो जाते, हो सकता है हमारा ध्यान डाइवर्ट हो जाता। सर एक्चुअली वेरी ट्रू एंड बहुत ज़्यादा खैर अब तो चीज़ें थोड़ी सी बदल गई हैं where there is the AI has entered the systems and you know so many other things in which थोड़ा सा ease of student has changed. I wouldn't say you know it has increased, but it has certainly changed to some degree. But not so far back, just a little over 10 years back, the situation was so hard. But जैसे आपने बोला कि एक जब आप मान लेते हैं कि difficult situation difficult नहीं है, and you know you trivialized the entire experience of having to stay in a lobby, which is otherwise very tough for someone दिल्ली अगर की वो सर्दी। सोचे so it is just your mindset and your willpower which actually trivialize such a difficult situation to such a small thing. I think that's a great quality to actually learn. So sir, when you finally got your result that day, what was it like? आपको result जब अभी अभी पता चला, where were you? How did you feel? Who did you tell first? How did your parents, your neighbors, your friends, how did they feel? क्या हुआ था उस दिन? That was the best day of my life that time. I was in गुजरात अगेन, मेरे फादर सर्विस में थे, तो हम वहीं पे जहाँ से हमने स्कूलिंग की थी वहाँ पे हमारा घर था, जो सरकारी घर होता है वहाँ पे ही थे। और इट वाज सो यूनिक कि मेरा जो फ्रेंड था ना वो ट्राई कर रहा था मुझे कॉल करने का, और उस टाइम पे हमारे पास एक वो था जो टैब था, उस पे ही हम पढ़ते थे, और वो नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था। समहाउ उस पे वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। देन आई गॉट अ कॉल ऑन माय लैंडलाइन कि पापा का जो वहाँ पे लैंडलाइन था, तो वो बोल रहे थे आप फटाफट चेक करिए जी, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया। मैंने बोला क्या हुआ? बोला आईपीएस बन गए हो आप। मेरी पैरों के नीचे से जो जमीन थी वो खिसक गई। एंड आई आस्क्ड हिम कि आईपीएस कैसे बन सकते हैं, रिजल्ट आया होगा ना, मतलब पहले तो ये पता चलेगा। तो बोलते नहीं नहीं, जो आपका वो स्कोर आया है, जो रैंक आई है, उसके हिसाब से अब आपको आईपीएस तो मिल जाएगा। फिर फटाफट 2-3 और पता चला, हमारे बैचमेट जो हमारे तैयारी कर रहे थे साथ में, दे वर अमंग्स द टॉपर्स ऑफ दी। वो बहुत अच्छा लगा एकदम से, कि शॉकिंग ये लगा कि ये कैसे जो जर्नी है इट हैज़ कम टू अ ब्यूटीफुल कंक्लूजन। सो फिर मैंने फ़ोन रखा, फिर जाके मेरे सिस्टर थे उनको बताया, वो सब तब तक समझ चुके थे कि कुछ हुआ है। तो मैंने जाके उनको बताया, पापा को फ़ोन किया, वो ऑफिस में थे। पापा ने इतने ही वाज सो बूस्ट अप कि वो सीधे अपने बॉस के पास चले गए। तो उनको लगा था मुझे उनको बताना ज़रूरी है क्योंकि ही इज़ एन ऑफिसर। तो उन्होंने उनको बताया एंड ही वाज आल्सो सो हैप्पी। फिर हमने एक, हमारे पास वो होती थी मोपेड, मेरी सिस्टर और मैं दोनों बैठे, हम उस पे निकल के एक पूरा जो कॉलोनी थी उसका राउंड लगा के आए और फिर बाहर आके भंगड़ा करने लगे। क्योंकि कुछ पता ही नहीं चल रहा था करे क्या। और एक्चुअली आस पड़ोस में जो थे वहाँ पे शायद थोड़ी अवेयरनेस कम थी या जो भी है, दे वर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि है क्या। हुआ क्या पर हमने है? बताया कि भाई ये हुआ है। फिर स्टिल इट टुक सम टाइम, फिर धीरे धीरे फिर नेक्स्ट डे से जो है वहाँ के जितने लोग थे सबको पता चलना शुरू हुआ। तो आई वाज इन गुजरात एंड इट वाज वेरी यूनिक। But बहुत ही अच्छा था। actually it's such the beauty of this exam is such that एक दिन पहले जब आप एक रात पहले अपने रूम में बैठे होते हो, यू आर एन एस्पिरेंट, आपने या काफ़ी साल दिए होते हैं, आपने बिल्कुल कोई जॉब बिल्कुल नहीं लिया होता है, बहुत लोग आपकी तरफ जजमेंटल तरीके से देख रहे होते हैं, दे आर थिंकिंग दैट ओके दिस पर्सन बिल्कुल। यू नो हैज़ डन समथिंग, वो इतने साल से प्रिपेयर कर रहे हैं एंड एवरीथिंग, एंड देन वन डे कम्स एंड देन यू आर स्टिल सिटिंग इन द सेम हाउस इन द सेम सिचुएशन एंड रिजल्ट कम्स एंड सडनली you are you know या someone who is a मतलब वेरी transformed person. जोकिंगली माय ब्रदर यूज्ड टू आस्क मी कि हमसे पहली वाली जो वहाँ पे बैच थी, जो स्टडी सर्कल था हमारा, उसमें मनाजिर जिलानी सर थे। तो ही वाज अ डॉक्टर एंड ही बिकेम आईएएस ऑफिसर इन 2013 बैच, आई थिंक 13 या 12 में बन गए थे। सो मेरे ब्रदर मेरे से पूछ रहे थे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस। तो मैंने उनको मजाक मजाक में कहा सबसे पहले जो डिफरेंस है वो परिवार में आ जाता है। ब्रदर सिस्टर्स हु थिंक दैट यू आर छोटा बच्चा, ये आप छोटे हैं, तो उनको समझ लगता है ये जो है ये तो कुछ जो है तो कर समझदार लिया है, कुछ तो आपने। करा है इसने। तो इट इज़ ऑन अ लाइटर नोट। तो बट हमेशा खैर आप उनके लिए तो बच्चे ही रहते हो, बट यस दे सडनली सी यू इन रिस्पॉन्सिबल पोजीशन। Yes, very true. एंड पेरेंट्स जो आपको बचपन से बच्चा बना के चलते हैं, उनके लिए सडनली ये होता है कि भाई ही इज नाउ गोइंग टू साइन ऑन फाइल्स विच आर सो Yes, इम्पॉर्टेंट, very ही important. हैज़ टू हैंडल लॉ एंड ऑर्डर इशू, ही हैज़ टू सी चैलेंजेस, जिसमें नॉर्मली हमें ये हिदायत होती है कि अपने घर में बैठ जाओ, अब हमारा बच्चा बाहर जाएगा सड़कों पे, वो
लोगों से डील करेगा, गुंडों से, गैंगस्टर से, क्रिमिनल से, इन सब से डील करेगा। तो वो सारी चीज़ें जो है वो पेरेंट्स के लिए भी बड़ा नया एक्सपीरियंस होता है। तो सर रिजल्ट आ गया, आप हुँ। आईपीएस बन गए, आपको पता चल गया एंड देन यू फाइनली रीच्ड एनपीए। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? वहाँ पे आप बहुत सारे लोगों के बीच में थे जो सब क्वालिफाई करके आए थे अलग-अलग हुँ। जगहों से एंड दे हैड देयर ओन स्टोरीज, देयर ओन जर्नीज। हाउ वाज एनपीए फॉर यू? इट्स अ वंस इन अ लाइफटाइम एक्सपीरियंस, क्योंकि अपनी एकेडमीज़ में तो हम बाद में भी जाते हैं। बट जब आप एज एन एस्पिरेंट टू एज अ सिलेक्टेड कैंडिडेट एंड देन यू आर गोइंग टू योर academy, that is the first interaction with the service that you are going to have. So NPA is a brilliant place, I think amongst the best that we had seen. सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, आपका शेड्यूल जो होता है वो फिक्स्ड होता है, एंड एक गूज़बम्प से आ रहे होते हैं आपके अंदर कि पता है कि आप सिलेक्शन से पहले जब आप तैयारी करते हो ना, तो मोटिवेशनल वीडियोज़ में आप यही वीडियोज़ देखते हो। तो हम देखते थे कि जो पुराने, जो पहले के बैचेस होते थे इन मसूरी और इन हैदराबाद और इन अदर अकेडमीज, हाउ डू दे इंटरैक्ट, व्हाट इज़ द शेड्यूल। मैंने भी देखी थी, मैंने एनपीए की वीडियोस बहुत देखी थी। सो मैं, मेरे मन में था कि मैं वहाँ पे जाऊँगा, वहाँ पे राजस्थान भवन है, एमपी भवन है, वहाँ के जिम बहुत अच्छे हैं, वहाँ के जो है स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ आर द बेस्ट। तो ये सब चीज़ें, एंड आपका शेड्यूल बना होता है। सो दैट इज़ द फर्स्ट प्लेस वेयर यू गेट टू लिव लाइक एन ऑफिसर, कि या आपको सुबह इतने बजे उठना है, आपको पीटी करनी है, आपको फिर इंडोर क्लासेस हैं, फिर आपका आउटडोर सेशन है, फिर इवनिंग में आपको जो है वापस से आउटडोर का कुछ पार्ट है, एंड देन यू गो आउट विद फ्रेंड्स एंड यू हैव टू वेयर दिस यूनिफॉर्म एट दिस पीरियड, और यू हैव टू बी इन योर फॉर्मल सीवीज, इनफॉर्मल सीवीज, ऑक्सफर्ड शूज़। सो ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये मोटिवेट करती हैं। मतलब हमें तो ये बहुत मोटिवेट करती थी कि आप तो कहीं पे भी कैसे भी जा सकते हो एज अ स्टूडेंट, बट अकेडमी में आपको मेस का डिसिप्लिन रखना है, आपको मेस के अंदर जो है वो यू हैव टू बी इन फॉर्मल अटायर। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत ही अच्छी लगती थी। तो सर आपने यूनिफॉर्म के बारे में कहा, यूनिफॉर्म इज द चार्म फॉर हम्म, मेनी मेनी लाइक लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स हु गिव द एग्जामिनेशन। पहली बार जब आपने वर्दी पहनी, हम्म। how did you feel? Did you have pride? Did you like, how was that experience? अब, जैसे बच्चों को, किसी बच्चे को जो उसको सबसे पसंदीदा चीज़ हो, जब आप दे देते हो, व्हाट विल बी हिज रिएक्शन, है ना। तो ये वैसी थी, मेरे पास वो फ़ोटो भी है। मतलब वो फ़ोटो सारे ही लेते हैं कि आपको नई नई यूनिफॉर्म स्टिच होके आती है, एंड इट वाज लिटिल लूज, और मतलब आज अगर मैं देखूँ तो मैं सोचूंगा शायद वो थोड़ा फिट हो के और अच्छी थी, बट वो मैंने पहनी, और विद इन द बैजेस एंड एवरीथिंग, और आके हम बाहर खड़े हुए, हमारे उस्ताद ने हमें ठीक किया, कैप ठीक करी। तो मैं जितना मर्जी सीरियस होके खड़ा था, बट मेरे अंदर वो जो है ना खुशी जो है मेरे चेहरे पे आ रही थी। तो हमने फिर वो फोटो फटाफट लेके पेरेंट्स को भेजी। इट वाज वंडरफुल फीलिंग आई थिंक कि सर जो जिस चीज़ की आप बात कर हम्म। रहे हैं उसकी खुशी आज भी आपके चेहरे पे नजर आ रही है। बहुत ही यूनिक सा ही फीलिंग होती है, मतलब क्योंकि उसके अंदर वो जो है वो, दैट इज़ द फर्स्ट यूनिफॉर्म। यस। रादर वो एकेडमी तक ही वो रहता है, क्योंकि उसके बाद में आप एक ऑफिसर ट्रेनी से यू बिकम एन ऑफिसर, व्हेन यू गो आउट यू बिकम एएसपी, तो यू यस। गेट द रैंक्स ऑफ एएसपी, फिर आप एसपी बन जाते हो, देन यू प्रोग्रेस फॉरवर्ड इन लाइफ। यस। तो वो जो वो वाला है एक साल, वो तो बहुत यूनिक है। तो सर आप यू फिनिश्ड योर ट्रेनिंग एंड देन यू वेंट ऑन टू जॉइन योर cadre, जैसे हम्म, आपने कहा कि आप एक ऑफिसर बन के निकलते हैं एंड देन यू फाइनली गो टू योर cadre. You initially were in JNK cadre, one हम्म, cadre which is has its own difficulties, हम्म। its own vulnerabilities, its own beauty, and so many aspects about it. तो आप JNK गए, क्या वो पहली बार थी that you went to JNK, or had you ever visited before? No, I had visited before, but that was as a tourist. So this time I had gone as an officer, or it was a beautiful place, beautiful cadre. Seniors were very supportive, एंड वी गेट टू सी डिफरेंट। इंडिया में आप मतलब कहीं पे भी जाएंगे ना, क्योंकि ट्रेनिंग में भी आपको ले जाते हैं, तो अटैचमेंट्स होते हैं, हर कहीं पे आपको अलग अलग ड्यूटीज़ देखने मिलती हैं। सो देयर ऑल्सो वी हैड, मेरी जहाँ ट्रेनिंग हुई थी दैट वाज अ बॉर्डर बेल्ट, वहाँ पे सब डिवीज़न था एक, और पुलिस स्टेशन था आरएसपुरा, आई स्टिल रिमेंबर। सो वहाँ पे हम जाते थे, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़ से लेकर जितनी वीआईपी ड्यूटीज़ हैं वो भी करते थे। वहाँ एक्टिव शेलिंग भी होती थी बॉर्डर पे, सो एवरीथिंग वाज देयर। सो इट वाज अ ब्यूटीफुल प्लेस, मतलब आई हैड अ गुड एक्सपीरियंस देयर।
So later on, then I was lucky to marry my wife. So we had been knowing each other, and then I got married, and then we shifted. So it was a beautiful journey. Everything is, I think, in life, everything that comes to you, it is a destined thing for you. So you should always be happy and welcoming it. वेरी ट्रू सर। सर फिर आप आ गए पंजाब में। पंजाब अगेन इट्स अ वेरी यूनिक कार्डर। क्या एक ऐसी चीज़ आपको लगती है जो पंजाब में है एज अ कार्डर विच इज़ नॉट देयर इन अदर प्लेसेस? मैं पंजाब एक्चुअली, देखिए कितना वो है, इट इज़ अ कोइंसिडेंस कि जब मैं भारत दर्शन में था तो आई वाज अ ग्रुप लीडर, ओके। एंड वी लैंडेड इन चंडीगढ़। तो हमारा पंजाब वाज पार्ट ऑफ आवर भारत दर्शन आइटिनरी। ओके। So we went to Amritsar, then Chandigarh. So even then I was in love with Punjab, क्योंकि पंजाब हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ सेक्रीफाइस। मतलब मेरे को नहीं लगता कि जैसे हर जगह की एक यूनिक चीज़ होती है, दिलेर होते हैं पंजाबी, है ना। तो आप जलियांवाला बाग हम गए थे, तो आई कुड नॉट यू नो एक्सप्रेस इन वर्ड्स कि वहाँ है ना, एक जैसे एक तपोस्थली होती है ना, तो वैसे है कि आपको वहाँ जाके आप देखते हो कि हमारी आज़ादी की लड़ाई में लोगों ने कितनी शहादतें, कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। सो पंजाब इज़ अ लैंड ऑफ ग्रेट वॉरियर्स। ये हमारे गुरुओं की धरती है, और इन्होंने मतलब देश को बहुत कुछ दिया। इट इज़ मतलब इसको डिस्क्राइब करना डिफ़िकल्ट है। और डे टू डे बेसिस पे भी जब हम देखते हैं कि हमारे लंगर लगते हैं, है ना, आप कभी भी चले जाइए, पंजाब में कोई भूखा नहीं रह सकता। सो ये इनफैक्ट मेरी वाइफ भी मुझे बताती है, मतलब इट इज़ अनइमेजिनेबल। और यहाँ पे जो कल्चर है कि आपको, आप हर हर कहीं पे यू डू चैरिटी, Yes. you whatever you earn, you give a part of it for the society, and that is how you see this tradition wherever they are in the world. Punjabi कहीं पे भी होंगे, they will do, not just do charity, but they will not show it as charity. It is part of the culture कि भाई हम वंड चखो, है ना। So जो है आप शेयर करो, और नेवर मेक इट अपीयर ऑल्सो कि यू आर डूइंग सम चैरिटी। तो वेरी हाई आइडियल्स, मतलब ये इतने उच्च सिद्धांत है जिनको सबको जो है फॉलो भी करना चाहिए। तो ये मैंने तो बहुत कुछ सीखा है पंजाब में, मतलब इट्स अ यूनिक प्लेस। हमारी जो सर्विसेज होती हैं उसमें से आईएएस, आईपीएस एंड फॉरेस्ट सर्विस जो होती हैं उसमें कार्डर एलोकेट होता है, और आपकी जर्नी का काफ़ी एक लंबा पार्ट उस कार्डर में जाता है, और काफ़ी लोग उसके बाद सेंटर में भी जाते हैं, बट काफ़ी लोग काफ़ी लंबा टाइम एक ऐसी जगह पे बिता सकते हैं जो शायद उनकी होम स्टेट नहीं रही हो। तो सर, हाउ इज़ द एक्सपीरियंस फ्रॉम शिफ्टिंग फ्रॉम गुजरात एंड राजस्थान विच इज़ योर नेटिव प्लेस टू अ डिफरेंट प्लेस? वॉज देयर एक्सेप्टेबिलिटी? मतलब वहाँ के लोग जिनको आप सर्व कर रहे हैं उनका आपकी तरफ कैसा बर्ताव रहा? हाउ वाज देयर एक्सेप्टेंस ऑफ यू बीइंग फ्रॉम समवेयर एल्स, बट you know completely, were you absorbed in the society? Were you taken well? दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जो हमें एक पर्सपेक्टिव देता है एक्चुअली, कि इसीलिए तो इसको ऑल इंडिया सर्विस बोलते हैं, है ना। और एक देयर इज़ अ डिफरेंस, मतलब एक डिफरेंस ऑफ इन विद इन सर्विसेज भी होता है। तो इवन सेंट्रल सर्विस जो भी आप जिस भी सर्विस में होते हैं, तो आप काम तो किसी ना किसी स्टेट में ही कर रहे हैं, पोस्टिंग आपकी स्टेट में होती है। सो यू हैव टू बिकम acquainted with the system, with the language, with the tradition, maybe in a shorter span. एंड इन केस ऑफ अस, कि आप अगर ऑल इंडिया सर्विस में हैं तो आपको वहाँ पे लोकल इशू से डील करना होगा, वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज़ को देखना होगा, डेवलपमेंटल इश्यूज़ को देखना होगा। सो सबसे पहले आता है कल्चर, कल्चर में भी लैंग्वेज। सो लैंग्वेज, जैसे मैं गुजरात में मैंने स्कूलिंग की थी, बट ऐसा नहीं है कि हम ओरिजिनली, मैं राजस्थानी हूँ। सो आई नेवर फॉरगॉट कि मैं राजस्थानी में बात नहीं कर सकता। मैं, हमारे घर में राजस्थानी में बोलते थे। स्कूल में जो क्रिश्चियन स्कूल था, एक कॉन्वेंट स्कूल था, तो वहाँ इंग्लिश में बोलते थे। बाहर मेरे फ्रेंड्स गुजराती में बोलते थे, और वहाँ पे महाराष्ट्र का भी इन्फ्लुएंस काफ़ी था, महाराष्ट्रियन भी काफ़ी थे, तो वो मराठी में बोलते थे। मेरी ट्यूशन टीचर थी एक जो पढ़ाती थी हमें, तो शी वॉज अ महाराष्ट्रन मैम थे वो, तो वो मराठी में बोलते थे। आई वुड अंडरस्टैंड, स्लोली स्लोली यू अंडरस्टैंड, Yes. एंड नेवर इट इज़ अ बॉदरेशन इन आवर माइंड, क्योंकि हम तो पढ़ते ही है ना, इंडिया इज़ अ मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर। Right. सो जब आप धीरे धीरे बड़े होते हैं तो यू रियलाइज़ कि यू आर, इट इज़ अ फैमिली।
Yeah. बड़ी सी फैमिली है जिसके अंदर हर कोई किस चीज़ में अच्छे हैं, किसी का किस चीज़ में वो है. सो व्हेन आई केम टू पंजाब, पहले तो जम्मू कश्मीर गया था, वहाँ पे हमें उर्दू लैंग्वेज का टेस्ट देना था. सो Okay. वी क्लियर्ड दैट एंड वी वर सर्विंग देयर. वहाँ पे उर्दू में लिखा होता था. फिर पंजाब में आए तो यहाँ पे पंजाबी बोली होती है एंड स्क्रिप्ट इज़ गुरमुखी स्क्रिप्ट. तो उसका हमें एग्ज़ाम देना होता है. एंड देन यू स्टार्ट लर्निंग रीडिंग, मतलब आपको सब कुछ आ ही जाता है स्लोली. सो नोइंग द लैंग्वेज इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड इट इज़ अ ब्यूटी ऑफ द सर्विस दैट यू गेट टू सर्व इन डिफरेंट पार्ट्स. ये तो हमारी मतलब खूबी है, ये जो हमारी यूनिटी और इंटेग्रिटी का एक पार्ट है. सो आई डोंट सी इट एज अ चैलेंज, बिकॉज सीखना है. सीखने के बाद में जब आपको आ जाता है, देन यू गो टू द सेकेंड पार्ट कि भाई द इंट्रिकेसीज ऑफ द काडर. सो लोगों का what is the within the state also there are different parts. So आप जहाँ जहाँ सर्व करते हैं ना, वहाँ पे आपको you understand कि nature of the people, problems related to that issue, that area. सो वो सब समझना एक सिविल सर्वेंट की ड्यूटी है और ये हमारा पार्ट ऑफ जॉब है. सो ऑल इंडिया सर्विस के अंदर आई थिंक इट इज़ अ ब्यूटी एंड बिफोर ज्वाइनिंग वी नो दिस थिंग. जैसे आपको बोलते हैं ना कि सिलेक्शन के बाद में सर्विस एलोकेशन के बाद में कार्डर एलोकेशन होता है. तो कार्डर एलोकेशन में आपको बोलते हैं कि ही और शी इज़ बॉर्न ऑन सो एंड सो कार्डर. सो मेरे को तो लगता है लिटरली वी आर बॉर्न इन दैट कार्डर नाउ, क्योंकि जब आप जाते हो ना, यू स्टे टिल द एंड ऑफ योर कैरियर and sometimes till the end of your life in that Yes, cadre. yeah. So ये अपनाना होता है. So मुझे लगता है तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, अच्छी एक्चुअली बात है. जो आप कह रहे हैं सर, ये अपनाना होता है. इट्स वेरी ट्रू, बिकॉज लॉट ऑफ टाइम्स इट हैपेंस दैट ऑफिसर्स एक पर्टिकुलर कार्डर में गए, जैसे पंजाब के, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन पंजाब, एंड टू यूपी, स्टेड देयर, एंड वो वहीं पे फिर दे स्पेंड देयर लाइफ, मेड देयर होम एंड एवरीथिंग. सो इट्स एक्चुअली अ मेल्टिंग पॉट वेयर एवरीबडी इज एक्चुअली कमिंग टुगेदर इन इंक्रीजिंग यूनिटी. सर, पुलिसिंग के रोल्स बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं. सर, व्हाट डू यू थिंक दैट इमोशनल इंटेलिजेंस और स्ट्रैटेजी और इंस्टिंक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट व्हेन इट कम्स टू पुलिसिंग? पुलिसिंग थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स जॉब भी है, सर्विस है. सो इसमें वी हैव टू डील विद पीपल, साइकोलॉजी ऑफ द क्रिमिनल्स, एंड देन प्रिडिक्ट सम सिचुएशन, प्रिपेयर फॉर इट, मिटिगेट इश्यूज. सो आपने कहा था कि कैन यू जस्ट रिपीट द 3 points? Sir, I said instinct, Instinct, strategy, or strategy, emotional intelligence. emotional intelligence. So that is true and I think more than that is also required, है ना, कि आपको information होना. Ultimately it's about how to diffuse a situation when you are dealing with law and order, and when you are dealing with some crime, how to investigate it, catch the criminal, modus operandi, ये सब चेक करना. सो इमोशनल इंटेलिजेंस डेफिनेटली आपको लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में बहुत काम आता है, क्योंकि बड़ी सिचुएशन छोटे इंसिडेंट से शुरू होती है. सो कोई लार्ज स्केल अगर एजिटेशन या कोई सडन प्रोवोकेशन से हो गया, तो उसके पीछे एक ज़रूर कोई ना कोई कॉजल इफेक्ट होगा. वो कॉजल इफेक्ट क्या वो कोई र्यूमर था, क्या वो कोई मैसेज था, या क्या वो किसी का स्टेटमेंट था. सो वो इमोशनल इंटेलिजेंस से उस चीज़ को टैकल करना कि व्हेन यू आर ट्राइंग टू डाउज द इमोशंस एट वन एंड, या आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश करें, दूसरी तरफ से वो दूसरा ना शुरू हो जाए, तो उनको भी मैनेज करना, इनको भी मैनेज करना. सो उस तरह से वो सिचुएशन जो है वो होती है. एंड इंटेलिजेंस आपको रखनी, अदरवाइज ऑल्सो यू हैव टू बी इंस्टिंक्टिव होना और इंट्यूटिव होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, कई बार सिचुएशन आपको ग्रास्प करनी होती है कि भाई ठीक है, जैसे क्लू है ना, इन्वेस्टिगेशन में हमें सिखाया जाता है कि एवरी क्राइम हैज़ अ फुटप्रिंट. सो हाउ डू यू ट्रेस दैट फुटप्रिंट इज़ योर क्वालिटी. आपने वो प्रिंट छोड़ दिया तो छोड़ दिया, तो वो नहीं मिल सकता, हो सकता है उसके अलावा कोई प्रिंट ही ना हो वहाँ पे. सो कोई भी क्राइम जो है उसको ट्रेस करने में कई बार सालों लग जाते हैं. आपने देखा होगा कि 10 साल बाद में वो पता चला ये था वो क्रिमिनल. सो यू हैव टू बी वेरी अलर्ट. आपको आँख, नाक, कान सारे अलर्ट रखे. इसके अलावा अपने सोर्सेज डिप्लॉय करने पड़ते हैं जो आपको आपके जाने के बाद में भी इंफॉर्मेशन दे. सो वो है. तो नॉर्मली एट सीनियर लेवल जब आप जाते हो किसी सीन ऑफ क्राइम पे, तो यू आर गोइंग देयर फॉर 2 पर्पसेस. एक तो ये है कि टू गिव अ मैसेज कि वी टेक इट वेरी सीरियसली और वी विल इंश्योर दैट जस्टिस इज डन. और दूसरा जो है, आपको फर्स्ट हैंड पता भी चलना चाहिए
कई बार योर प्रेजेंस, एवरी ईयर, एवरी आई हैज इट्स ओन ग्रास्पिंग। तो हो सकता है आपका सब इंस्पेक्टर अपने लेवल पे देख के आया, आपका कांस्टेबल भी देख के आ रहा है। कई बार कांस्टेबल इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, कान में आके धीरे से बता देंगे कि सर इसमें ये चीज़ आए थे, ये वहाँ से दिखा गया था। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू गैदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द एंगल्स टू गेट द कंप्लीट पिक्चर। Very true. So actually, it's quite complex because ultimately it's all humans that are involved, and so many Yeah. intricate details get reflected in the kind of work that you Hmm. do. So climate is changing, and disaster management has become something that is very prominent now. And policing has its own very important role to play when it comes to disaster management. Has there been a situation in which you had to manage disasters? Yeah, there have been. I think I had the opportunity to serve during such situations. एक मुझे याद है 2023 में floods आए थे. So I was SSP गुरदासपुर that time. Right. So it was a sudden flood क्योंकि हम 15 अगस्त का फंक्शन कर रहे थे. I was and the deputy commissioner were there. एंड सडनली वी गॉट द इन्फॉर्मेशन कि एक दूसरी बंद जो है उसमें क्रैक आ गया या वो जो है. सो सडनली देयर वाज अ फ्लो ऑफ एंटायर रिवर इनसाइड आवर एरिया. सो वी वेंट देयर, वी सॉ एंड इमीडिएटली वी हैड टू रिस्पॉन्ड क्योंकि एक तो इवैक्यूएशन होता है, दूसरा ये है कि आपको प्लानिंग करनी पड़ती है इमीडिएटली. तो हमने एक कैंप बनाया वहाँ पे, रिलीफ कैंप बनाया, स्कूल जो था. फिर हमने लोगों को मोबिलाइज़ किया एंड जैसे मैं शुरुआत में बता रहा था कि पंजाबीज हैव दैट स्पिरिट. तो इमीडिएटली वी गॉट द रेस्पॉन्स ऑल्सो. सभी ने मिलकर जो है इसमें जो है अपना योगदान किया. और मुझे लगता है कि इसे 3 दिन लगे थे हमें. 3 दिन के अंदर वो इतना बड़ा क्रैक था क्योंकि वो फ्लो ऑफ द रिवर सडनली बढ़ गया था. हाई रीचेस में बहुत तेज़ बारिश हुई थी, तो जो आगे की तरफ जो पानी आया था वो हमारे एरिया के अंदर आ गया था. सो वहाँ पे 300 फीट तक का एरिया जो है ऑलमोस्ट वो डैमेज हो गया था. Okay. तो वो सारा पानी इस तरफ आ गया. हमें फिर उसके अंदर 300 फीट का जो क्रैक था उसको हमने 3 दिन के अंदर, हमने यानी कि हमारी पूरी टीम ने, और टीम के अंदर सारे लोग इन्वॉल्व, आम जो जनता है हमारी, उन सब ने रिस्पॉन्ड किया. आके वहाँ पे दिन रात लगे रहे, ऑफिसर्स, मशीनरी, मैन, और सब ने किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी. तो वो मेरे को एक एग्जाम्पल लगता है कि जहाँ हम सब की इंटेंशन साफ हो, हम सब एक साथ एकजुट होकर किसी आपदा का सामना कर रहे हो, कोई नेचुरल डिजास्टर भी हो, तो ह्यूमन स्पिरिट ऑलवेज विंस. Yes. तो वो लास्ट वाला जो हमने बैग रखा था वो तीसरे दिन था. और Okay. एक 300 फीट का वो पिक्चर आज भी मेरे पास है कि हम सारे एक लाइन से उस पर खड़े थे. एंड इट वाज अ विक्ट्री ओवर सच अ डिजास्टर. अदर देन दैट कोरोना, जिसमें तो पूरी दुनिया ने ही फेस किया है. एवरीबडी हैज इट्स ओन स्टोरी. सो वी हैव वर्कड ड्यूरिंग दैट, एक्टिवली वर्कड एज फील्ड ऑफिसर. सडनली देयर वाज अ देयर वाज अ लॉकडाउन ऑल्सो. तो लॉकडाउन के बाद में कैसे लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, कैसे ट्रांसपोर्टेशन मैनेज करना है, कैसे खाना देना है, स्टोरेज बहुत ज़्यादा ना हो जाए कहीं, सप्लाई ऑफ मेडिकल एंड इमरजेंसी फैसिलिटीज़, ये सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और जितने NGOs थे उनके सिर पे आया था. एंड आई रिमेंबर कि कैसे आई एंड माई वाइफ वी वर बोथ पोस्टेड. सो हम गाड़ी में निकलते थे, वो जा मास्क हमारे पास होते थे, मेडिकल सर्विसेज की जो भी इमरजेंसी हेल्प होती है वो रखी रहती थी, माइक सिस्टम होता था. और कई बार जो सबसे ज़्यादा पोरेस्ट अपने सोसाइटी के होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा सफ़र भी करते हैं बेचारे. सो वहाँ पे उनको जाके एड्रेस करना, कई बार वो निकल नहीं पा रहे, उनके पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, उनके पास अप्रोच नहीं है. तो कैसे आप उन सभी गलियों में, उन सभी जगहों पे जाके उनको हेल्प करते हो, ये बहुत बड़ा चैलेंज है. एंड देन यू रियलाइज कि आपको तब ये भी पता चलता है कि भाई कैसे एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट का असर सोसाइटी के हर एक लेवल पे अलग अलग होता है, बहुत ज़्यादा अलग अलग होता है. सो हमें सिखाते भी बहुत कुछ है ये सारे जो महामारी हुई थी या कोई और नेचुरल डिजास्टर है, वो हमें सिखाते भी हैं. Sir, actually, what you're mentioning is very true. And it was the corona time that sort of impacted the entire world. And it was the frontline workers, wherein there were doctors and there were police officers and other people who had to still go on duty and, do the बिल्कुल. work for people who were बिल्कुल. then kept safe, and we could save so many lives. So it was very impactful, actually, the work that you have done and you've spoken about.
I remember कि my daughter was born in the second wave, during the second wave. So उस टाइम पे ये था कि we were working and आपको काम भी करना है और सडनली यू कम इन कांटेक्ट, या आपको कई बार हॉस्पिटल की विज़िट करनी, जैसे जो मेरे वाइफ थे उनको विज़िट करना था कि ऑल दी फैसिलिटीज़ आर देयर, और कई बार जाना पड़ता है कि एक ऐसे उसमें। सो सडनली वी गॉट टू नो कि जहाँ पे वो गए थे वहाँ पे कोरोना पॉजिटिव आ गए थे बाद में डॉक्टर्स या जो। Okay. फिर हमने जो है इनका भी क्वारंटाइन करा, फिर टेस्ट कराया, फिर काफ़ी कुछ ऐसा हो जाता है कि इवन जो बच्चे बर्थ भी हो रहे थे जहाँ जहाँ पे, वहाँ पे नियोनेटल जो वार्ड थे वहाँ पे भी ये आना शुरू हो गया था। सो Corona एवरीबडी positive वाज children. कवर्ड एंड दैट वाज Right. फॉर एवरीवन। मतलब आई रिमेंबर कि इतनी दर्दनाक स्टोरी सबकी होती थी कि हम एवरी डे वी यूज्ड टू प्रे कि भाई सबको ही भगवान जो है साहस दे, Yes. ये बहुत खतरनाक जो सिचुएशन उससे हम लड़ रहे हैं। बट आप देखिए आज हम वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड कि हम बैठे हैं वापस Yes. बिना मास्क के, बिना उसके, क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि हम इमेजिन ही नहीं कर सकते थे, Yes, है absolutely. ना। सो There was a time when we had no idea that will the masks ever go बिल्कुल or will बिल्कुल Corona ever go, and it's such a delicate thing that you've spoken about, wherein even in the neonatal centers, wherein there were small children who were then Corona positive, and they had to be kept away from the children who were not Corona positive. they So were it's mothers and it मतलब डिलीवरी तो is itself a painful thing for the mother. Father is there emotionally and every way you are there, but then mother is giving birth, yes, and that also in the middle of corona, where the doctors, and thanks to the doctors, they are sacrificing, they are giving their own comfort and being in the middle of patients. So yes. यही तो हमारी ब्यूटी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे everybody should feel good about their role. When Very we come true. together, we work together, we achieve tremendous success. So सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर दी एस्पिरेंट्स. हमारे जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो प्रिपेयर कर रहे होते हैं, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे आर गोइंग थ्रू हार्ड टाइम्स एनीवे, बट दे डोंट नो व्हाट्स कमिंग. यू हैव स्पेंट मोर देन अ डेकेड इन सर्विस. सर, डू यू कैन यू नेम अ फ्यू क्वालिटीज दैट द स्टूडेंट जब वो पढ़ाई कर रहा हो, वो उस टाइम पे ऐसी 2-3 क्वालिटीज डेवलप करे जो वो फाइनली अपनी, बिकॉज देयर जर्नी इज टू एक्चुअली बिकम अ ब्यूरोक्रेट, तो जो उन्हें उस टाइम पे हेल्प कर पाए. मे बी फ्यू क्वालिटीज इफ यू कुड नेम दैट दे शुड डेवलप दोज क्वालिटीज फ्रॉम दैट टाइम इटसेल्फ. I have so many things that make an experience, or everybody has. Yes. So few qualities देना थोड़ा difficult होगा, but I will try to still say, जैसे हमने भी देखा था, persistence is very important. ठीक है, मैंने किताबें भी कुछ पढ़ी है तो मैं उनमें भी ये चीज़ देख रहा था कि there are short term benefits or short term gains that you see in life. हम हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो शॉर्ट टर्म में हमें मिल रहा है, हम में इतना कैलिबर होना चाहिए कि उसको हम अवॉइड करें। जो शॉर्ट टर्म लग्जरीज ऑफ लाइफ होती है या एंटरटेनमेंट होता है, उसको हम कितना अवॉइड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए। तो अगर हमारा अल्टीमेट एम है कि हमें लाइफ में सीनियर ऑफिसर बनना है, ब्यूरोक्रेट बनना है, या वो रिस्पेक्टफुल पोजीशन लेनी है लाइफ में जिससे आपको इंटरनल सेटिस्फैक्शन आएगी, आपको सोसाइटी के अंदर एक अच्छा रुतबा मिलेगा, तो क्या ये आज का हम जो फ़ोन में अपनी वीडियोस देखना है, या फिर क्या हम हैंग आउट करना है फ्रेंड्स के साथ, नाइट आउट करना है, क्या वो अवॉइड कर सकते हैं? क्या इतनी छोटी सी कॉस्ट दे सकते हैं? मतलब मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जब पढ़ते थे ना उस टाइम में मुझे लगता था कि ये यूपीएससी इज़ अ मैजिकल थिंग। मतलब इससे ज़्यादा मैजिकल तो कुछ हो ही नहीं सकता कि आपको कुछ नहीं करना, ठीक है, आपने सिर्फ अपने आप पे डिसिप्लिन लाना है। इट्स नॉट दैट कि आपको दुनिया में किसी और को ठीक करने जाना है, दैट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। आपको जो बॉडी भगवान ने दी है उसको आपको ठीक करना है, आपको अपना डिसिप्लिन रखना है, सिर्फ आपको पढ़ना है। एक बार आप एग्ज़ाम के अलग अलग लेवल्स हैं उसको क्लियर कर लीजिए, लाइफ लॉन्ग गारंटीड वेरी सीनियर पोजीशन, गवर्नमेंट जॉब या सर्विस जो है वो आपको मिल रही है, और डे वन से आपको जो ब्रांड जो है उसका आप पार्ट बन जाते हो। मतलब इससे ज़्यादा मैजिकल क्या होगा? और यू सी ईच एंड एवरी स्टोरी every year. The stories are different, but they have the same message that discipline is required, then perseverance is required, and positive approach या optimism is required. Life is always uncertain. We don't know हम बाहर जा रहे हैं क्या होगा. Nobody knows. ठीक है, बड़े से बड़े आदमी के साथ भी एक्सीडेंट्स होते हैं. सो हम उस चीज़ को गारंटी लेके ना चले,
जो हमारे पास आज है हम उसको ले, फ्यूचर के बारे में ना डरे, ऑप्टिमिज्म के साथ अपना जो बेस्ट पॉसिबल है वो करें। मुझे लगता है कि जो बेस्ट पॉसिबल कर सकते हैं, फिर यू विल बी सेटिस्फाइड एंड अल्टीमेटली यू विल गेट वॉट एवर इज द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। सो that is my message. So, one last question. If you could go back in time and visit you when you were a child and when you were preparing, when you were a different person altogether, when you had your own challenges and when you were much younger, if you could say one thing to yourself who maybe had self-doubt, who was not there yet, you had not made it, if you could go back and tell that child or that young person, student, something, can you what would you like to say? That will be very, that will be very personal. But I would still say कि बच्चों को है ना, देखो मेरे मेरे लाइफ में और वैसे भी मैं मानता हूँ कि बच्चे देश का भविष्य जो हम बोलते हैं ना, वो बहुत एक गंभीर वाक्य है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों को सबसे प्यार से रखना चाहिए, बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी ये सब देखनी चाहिए। और अगर मैं अपने आप के बारे में सोचूं कि एज अ स्टूडेंट या एज अ चाइल्ड मैं अपने आप को क्या बोलता, तो शायद मैं ये बोलता कि लोगों के ओपिनियन से फ़र्क नहीं पड़ता। यू जस्ट बी हैप्पी, जस्ट बी चेयरफुल, एन्जॉय योर लाइफ, क्योंकि बचपन तो कभी वापस आना नहीं है। तो हम वो चीज़ कि मैंने देखा भी है कि हम कई बार एज पेरेंट्स भी है ना काफ़ी ज़्यादा बोझ डाल देते हैं, तो वो बोझ नहीं होना चाहिए। हमारे टाइम पे अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि था थोड़ा, एस्पिरेशंस होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और दूसरों के ओपिनियंस हैं। टीचर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। सो शायद मैं अपने आप को भी बोलता और शायद मैं अपने टीचर को भी बोलता कि डोंट बी लाइक दैट, कि आप जो है ना बच्चों को प्रेशराइज करें, लेट देम एंजॉय, लेट देम बी क्रिएटिव इन लाइफ, दे विल ऑटोमेटिकली दे विल ग्रो, they will automatically learn the society, learn the economy and everything. But life को थोड़ा कम seriously लेना चाहिए और बच्चों को बच्चे की तरह रहने देना चाहिए। Thank you so much for joining us, sir. This was a very, very, very enlightening conversation that we had, and I'm sure our students would be taking a lot back from this conversation. Thank you. I'm thankful that you could have me here, and any part of it is helpful to even a single person. I would think that I have done my bit, and I'm thankful to you again. Thank you so much.